Okay, so good morning, everyone. Let us start. Okay. Yes, ma'am. Okay. So today we will learn the another topic of the traffic system, transportation system. Rather, we can say of the traffic system. Okay, that is your traffic control devices. So, anyone, can you please tell me or give me some examples of traffic control devices that you see in your daily life while traveling on a highway, on a roadway, on a street? Traffic signal. Yes, that is one kind of control Yes, device, ma'am. traffic signal. Okay, so apart from traffic Yes, signal, ma'am. there are other kind of control devices also. So what are those examples? Apart from signal, today we will not learn signal, but apart from that, there are other two control devices also. We will learn those things. So those are your traffic sign and traffic markings. Okay. Yes, ma'am. So signs and markings are also, they also play an important role as a traffic controlling devices. Controlling means what? Controlling means, see, these are the traffic. If you do not provide any kind of such control devices, then what happens? Yes, ma'am. This movement, this traffic movement, it will not be smooth, it will not be efficient, okay, and Yes, you ma'am. may face jam, okay, because of the uncontrolled system. What you will do? You may face jam, okay, and as a result, what happens? There will be loss or there will be delay in your time, okay, in your Yes, ma'am. journey time, there will be delay. That means while traveling from one point to another point, your traffic system should be such that it will take minimum time to cover that distance. That means your delay should be minimum. Delay means what? When your vehicle is at stop condition, that means you are not moving. So that is one kind of delay. Okay. Say for example, you entered a jam, then your vehicle has to be stopped there for certain minute. So that is obviously Yes, ma'am. you will become late, right? You have to Yes. reach at a certain place at a certain time, but you are not, you cannot reach that place because of that delay. So if all these control devices do not are not designed properly and they do not work properly, then what happens? There will be everything will be concluded that you will face delay. Okay, not only delay, Yes, ma'am. there may be chances of accidents also, Oh, right? yes, ma'am. If two vehicles, or sorry, if two roadway intersects each other, say for example like this, okay, if this is the case, this is actually not the this is actually intersection, but this is not the cross intersection, this is your rotary intersection. Okay, so see here इसमें one जेब्रा way. क्रॉसिंग भी होता है ना ट्रैफिक साइन में? Yes, 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 that is not sign, that is marking. Okay, मार्क, यस मैम. so see here zebra crossing means what? Here you can use, people can cross zebra crossing. Okay, so this is one kind of marking. Okay, यस and मैम. here your traffic are what doing? See, this traffic is moving here and another traffic is moving in this direction. So यस मैम. because of these signs, signals and all these things, they are moving in a channelized direction. Okay, यस मैम. if there is, suppose there will be uncontrolled device, that means there will be some uncontrolled intersections. So what happens? You may face problem because one vehicle entering from another approach, he or she doesn't know when to cross the road. Okay, so in that case, what happens? If you provide a signal there, then it will be easy for them. Okay, a time will be allotted to them where he can or he or she can cross that road. Okay, whereas the people coming from the other road, they have to stop during that period until you cross the road. Okay, so sorry. So for the smooth, efficient, less hazardous, okay, of the traffic system, movement of the traffic system, you need these control devices. There are basically three type of control devices. That is, first is your traffic signal, another is your traffic sign, okay, and the third one is the traffic marking. Today we will learn about these first two, that is the traffic marking and your traffic sign. Okay. So we will learn what are the different types of the marking. You have seen several types of the marking, but now today after this lecture you will identify or you will be able to say, Acha, this
kind of marking comes under this category. Okay, we can identify those markings now. After this class, I think you will be able to tell other people that acha, this marking comes under such and such category, or this kind of traffic sign comes under such and such category. Okay, we may be able to classify. Now depending upon the purpose also, we have classified those markings and these signs. Okay, so let us see. Say for example, in this case, okay, what you can see? Tell me what you can see. Which control device you can see? Anyone in that previous video? What kind of traffic control device you can see on the roadway? Here? Hello, am I audible? Yes, ma'am. So tell me, what are the type of the traffic control devices you can see in this video? मैम जगह का किलोमीटर मीटर कितना दूर जगह है सब Yes, see this sign board. Okay, so this is your traffic sign. Okay, we will see ये वाला कौन सा कैटेगरी में आएगा, ये भी हम देखेंगे. So this is also one kind of ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस. यहाँ पे देखो ये है क्या, वर्ड मैसेज आ रहा है, राइट, डिस्प्ले में एक आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल वर्ड मैसेज. दिस इज आल्सो काइंड ऑफ ट्रैफिक साइन ओनली. यहाँ पे देखो 40 किलोमीटर कुछ है यहाँ पे, राइट, दिस आल्सो वन काइंड ऑफ साइन. ये देखो ये सब मार्किंग है ना, देखो यहाँ पे येलो है. ओके, हियर सेंट्रल लाइन है. सेंट्रल लाइन मतलब कि तुम्हारा लेन को अलग कर दिया है. ये जो डैश डैश करके गया है, इस तरफ में भी मार्किंग है. सो These are the controlling devices. देखो इसकी वजह से ये सब के सब एक ही लाइन में जा पा रहे हैं, राइट. सो दिस लेन मतलब एक लेन को डिवाइड कर दिया है, हर एक लेन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है. सो वी कैन से दैट दिस इज 1 2 3 4 5 मतलब 4 लेन्स आर हियर, राइट. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्किंग. देखो इसका कलर व्हाइट है, वेयर एज हियर यहाँ पे देख सकते हो ये येलो है. दिस इज द बॉर्डर मार्किंग, राइट. तो वैसे ही है, ये वाला कलर अलग सा है, इसका कलर अलग सा है. सो एवरीथिंग हैज बीन डिजाइन एज पर आईआरसी कोड. ओके, तो पेमेंट का जो भी है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है तुम्हारा पेमेंट बोलो, ये सब यहाँ पे भी एक कोड स्टैंडर्ड वी नीड टू फॉलो. मतलब ये जो व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ दिस लेटर, ओके, व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दिस, कितना एरिया होगा, ये शेप कितना होना चाहिए, लेजेंड का कितना तुम्हारा लेटर का हाइट कितना होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, ऑल दिस आर एज पर आईआरसी कोड. ओके, तो वी विल सी. अब यहाँ पे तो तुम्हारा है सिग्नल, ये वाला आएगा तुम्हारा सिग्नल कंट्रोल डिवाइसेस में. वी विल लर्न अबाउट दिस इन द लेटर क्लासेस. ओके, तो जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, देखो अब तुम जा रहे हो, यहाँ पे एक मार्किंग आ रहा है, ये वाला एक मार्किंग आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे बस स्टॉप का मार्किंग, स्पीड लिमिट का मार्किंग, ठीक है. ओके, तो देखो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मार्किंग. ये क्रॉस मतलब ये है तुम्हारा सामने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, ठीक है. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मार्किंग, सॉरी साइंस. अब ईच साइन का भी अपना अलग अलग पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज ऑब्जेक्टिव वी हैव क्लासिफाइड दोज ट्रैफिक साइंस आल्सो. ओके, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइन. हम लोग देखेंगे कि ये वाला किस में आएगा, ये तुम्हारा जो क्या बोलते हैं स्पीड का जो साइन बोर्ड है किस वाले में आएगा. वी विल लर्न अबाउट दिस. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक लेट अस डिस्कस, दैट इज द रोड मार्किंग. So code which is used for road marking is what, IRC 35. Okay, so this is the code. ये MCQs के लिए तुम लोग याद रख सकते हो, IRC 35 है ये वाला कोड के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, रोड मार्किंग्स आर डिफाइंड एज दी, मतलब मार्किंग बोल के तुमको क्या दिखता है, क्या क्या दिखता है. देयर विल बी सम पैटर्न ऑन दी रोडवे, रोड सरफेस के ऊपर पैटर्न रहता है, या कुछ लाइन्स रहता है, या कुछ वर्ड्स भी रहता है. ओके, वर्ड्स ये सब भी रहता है. तो एक होता है पेवमेंट के कैरेज वे के ऊपर. कैरेज वे इज दैट पोर्शन ऑफ द पेवमेंट वेयर योर व्हीकल विल मूव, ठीक है, जहाँ पे ये कैरी करेगा, ठीक है. सिर्फ तुम्हारा रोडवे में सिर्फ कैरेज वे नहीं रहता, वहाँ पे शोल्डर भी रहता है, राइट, मतलब फुटपाथ के लिए भी जगह रहता है, गाड़ी के लिए अलग से जगह रहता है. तो द कैरेज वे इज फॉर द व्हीकल. तो इन द कैरेज वे देयर विल बी सम मार्किंग, उसको बोलते हैं कैरेज वे मार्किंग. कैरेज वे और तुम्हारा फुटपाथ बोलो, शोल्डर को सेपरेट करता है क्या, कर्व को भी हम लोग मार्क करना पड़ेगा, जिससे कि हमको पता चले कि हाँ यहाँ पे कर्व है, राइट. सो कर्व मार्किंग या ऑब्जेक्ट मार्किंग भी बोलते हैं, ठीक है. तो 2 टाइप का मार्किंग जनरली होता है, एक होता है तुम्हारा कैरेज वे मार्किंग, एक होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट मार्किंग.
ठीक है, मतलब कैरेज वे मतलब पेवमेंट के ऊपर होगा मार्किंग्स, और ऑब्जेक्ट का मतलब है जो जो ऑब्जेक्ट कैरेज वे के अंदर है उसमें भी मार्किंग होगा, और जो कैरेज वे के पास पास में है उसमें भी मार्किंग होगा। तो हमको वो देखना है कि कैरेज वे के कितना दूर, मतलब रास्ता जहाँ पे तुम्हारा गाड़ी मूव करेगा उसके अगल बगल में भी मार्किंग देना है। तो कितना डिस्टेंस तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम उसको मार्किंग मतलब मार्क करेंगे। तो वो भी एज पर IRC 35 गाइडलाइंस मेंशन किया गया है। ठीक है, वी विल सी कितना डिस्टेंस तक को हमको मार्क करना है। ओके, तो क्या क्या यूज होता है, पेन्स, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, मतलब ये वाला क्यों यूज करते हैं, पेन तो यूज करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स हम लोग क्यों यूज करते हैं ऑन दी मार्किंग। रास्ते पर देखते हो ना कुछ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स रहता है रात को, जिसको कैट आई भी बोलते हैं हम लोग, राइट। तो क्यों देते हैं उसको, रात को अगर नजर आ सके इसलिए। यस, सो दैट अगर रास्ते मतलब रात में तो हम लोग क्लियर विजन नहीं दिखाई देता, राइट। तो रात में क्या होता है, हेडलाइट ऑन होता है, हेडलाइट की वजह से जो कैट आई है वहां पे रिफ्लेक्ट होके लाइट्स रिफ्लेक्ट होता है, तो उसकी वजह से तुम्हारा जो भी रास्ता है पूरा एकदम डिलिनिएट हो जाएगा कि हाँ ये वाला कैरेज वे है बोल के पता चलेगा हमको, राइट। सो इसलिए ये सब यूज करते हैं। ओके, सो अदर्स मटेरियल्स आर दिस थिंग्स। अब देखो कितना सारा मार्किंग है, तुमको पता था कितना सारा मार्किंग होता है, देखो कितना सारा है। तो मेनली लेकिन यहाँ पे दो टाइप का मार्किंग है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज द कैरेज वे मार्किंग, सेकेंड इज द ऑब्जेक्ट मार्किंग। ठीक है, अब कैरेज वे मार्किंग के अंदर में आता है कि किस डिरेक्शन में तुम लोग मार्क कर रहे हो। ओके, इफ द मार्किंग इज अलोंग द डिरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक देन दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। ठीक है, और जो जो मार्किंग्स परपेंडिकुलर मतलब अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक में मार्क करते हैं उसको बोलते हैं मार्किंग्स, मतलब मार्किंग्स ऑन द इंटरसेक्शंस, राइट। और दूसरा टाइप का क्या क्या है, तीसरा टाइप का है मार्किंग्स ऑन द हैजर्डस लोकेशन, मतलब जो थोड़ा डेंजरस एरिया है या जहाँ पे कॉशियसली ड्राइव करना पड़ेगा उस एरिया में जो मार्किंग्स हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं मार्किंग्स एट हैजर्डस लोकेशन। ठीक है, मतलब कर्व अगर है, टर्निंग्स अगर है, ठीक है, ट्रांजिशंस है जहां जहां पे, तो वहां पे हम जैसे रेलवे क्रॉसिंग अगर जहां पे है तो वहां पे भी जो मार्किंग देते हैं दैट इज कॉल्ड द मार्किंग्स एट हैजर्डस। ठीक है, सो दूसरा है मार्किंग्स फॉर पार्किंग, पार्किंग एरिया में भी मार्किंग दिया रहता है। ओके, दूसरा है वार्ड मैसेजेस, कभी कभी तुमको दिखेगा कहीं कहीं जगह पर रोडवे के ऊपर, रास्ते के ऊपर एरो मार्किंग है या स्टॉप लिखा है या स्लो लिखा है या बस स्टॉप लिखा है, राइट। सो ऑल दिस एग्जिट लिखा है, राइट। तो उसको हम लोग वर्ड मैसेज के अंदर में इंक्लूड करेंगे। ओके, सो बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्किंग्स आर देयर, ब्रॉडली एक है जो कैरेज में हम लोग कैरेज वे में जो मार्क करेंगे उसको बोलेंगे कैरेज वे मार्किंग, मतलब रास्ते के ऊपर जितना भी मार्किंग है उसको बोलेंगे कैरेज वे मार्किंग। और रास्ते को छोड़कर बाकी ऑब्जेक्ट में अगर मार्क करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट मार्किंग। ओके, तो उसमें भी कितना है देखो, ऑब्जेक्ट विद इन द कैरेज वे, ऑब्जेक्ट एडजेसेंट टू द कैरेज वे, मतलब जो जो ऑब्जेक्ट कैरेज वे के अंदर में ही रहेगा उसको जो मार्क करेंगे उसको करेंगे, उसको मार्किंग को बोलेंगे ऑब्जेक्ट विद इन द कैरेज वे। और कैरेज वे के अगल बगल में जो जो तुम्हारा जैसे कर्व हो गया, राइट, अगल बगल में जो मार्किंग देंगे उसको बोलेंगे, जो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको, मतलब अगल अगर आसपास में कोई तुम्हारा ट्री है या कोई तुम्हारा पोस्ट है, पोल है, साइन पोस्ट का पोल है, उसको भी हमको मार्किंग करना पड़ेगा। ओके, तो साइन पोल तो हम तो कैरेज वे में नहीं दे सकते, राइट, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, कैरेज वे से थोड़ा दूर रखते हैं। ओके, लेकिन उसको भी हमको मार्किंग करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट टू द कैरेज वे, मार्किंग ऑन द कर्व्स। ओके, तो कैरेज वे मार्किंग में आएगा लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो लंबा जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक जो जाएगा उसको लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग बोलेंगे। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक जो जाएगा उसको इंटरसेक्शन में जो जो मार्किंग है वो आएगा। ठीक है, हैजर्डस लोकेशन में जो जो मार्किंग है मतलब टर्निंग वगैरह वहां पे मार्किंग देंगे। पार्किंग एरिया में जो मार्किंग होगा वर्ड मैसेजेस। ओके, तो ये है ब्रॉड क्लासिफिकेशंस। अब आते हैं कि कैसे कैसे मार्किंग बनता है। कोई कोई जगह पर लाइंस होता है, राइट, हम लोग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, कहीं कहीं पे पैटर्न्स यूज करते हैं, राइट। जेब्रा क्रॉसिंग तो एक पैटर्न है, जेब्रा का जो है पैटर्न उसको ही तो हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। कहीं कहीं पे वर्ड्स देते हैं या कहीं कहीं पे रिफ्लेक्टोमीटर जो देते हैं, रिफ्लेक्टर, ठीक है, अदर्स। सो
अच्छा, नाउ टेल मी व्हाई ऑल दिस मार्किंग्स आर नीड टू बी इंस्टॉल्ड, क्यों, क्या होता है मार्किंग्स देने से? रास्ता है, तुम रात में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, एक रास्ता में पूरा वो कैटाई दिया गया है, रिफ्लेक्शन वो सब इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, एक में नहीं लगाया है, किसमें तुमको तकलीफ होगा, विच मतलब किसमें तुमको अच्छा लगेगा, या यू विल ट्रैवल स्मूथली, पहले वाले में या सेकेंड वाले में, जिसमें मार्किंग है या जिसमें मार्किंग नहीं है? एक रास्ते, दो रास्ता है, एक में कुछ मार्किंग नहीं है, एक में सब मार्किंग अच्छी तरह से, मार्किंग एज पर IRC 35 सब कुछ मार्किंग करके रख दिया है, ठीक है, तो तुमको किस में जाने में प्रॉब्लम होगा, जिसमें फेस करोगे? जिसमें मार्किंग नहीं है, जिसमें मार्किंग नहीं है। ऑब्वियसली राइट, तो क्यों? क्योंकि बिकॉज जो मार्किंग है ये पर्पस फुलफिल करता है, मार्किंग का पर्पस है क्या, तुमको जाने में सुविधा भी होगा मार्किंग होने से। हाँ, तुमको गाइड करना, राइट, मतलब कि देखो इतना ही कैरेज वे है, इतना ही, इसी वे के ऊपर ही तुमको अपना गाड़ी रखना है, इसके अगल बगल में चढ़ाना नहीं है, राइट, यहीं से तुम्हारा रूट जो है यहाँ से जाएगा, इस डायरेक्शन से जाएगा, सब तुमको दिखाई देगा, राइट, सो गाइड कर रहा है, तुमको कंट्रोल भी कर रहा है, ठीक है, एक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब कि इतना ही रास्ता है मेरे लिए, इतना ही अवेलेबिलिटी, हमको इतनी गाड़ी चला के जाना है, राइट, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर कर देता है, मतलब जो एज में होता है मार्किंग, वो बेसिकली देते हैं किस लिए, जिससे कि वो हमको अपना लिमिट पता चले कि गाड़ी को कितना कैरेज वे कितना दूर तक है, जितना दूर तक कैरेज वे उतना दूर तक ही तुम अपना गाड़ी को ले सकते हो, उसके उस तरफ भी नहीं जाना है क्योंकि वहां पे फुटपाथ साथ हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है। डिलिनिएशन ऑफ द ट्रैफिक पाथ, राइट, चैनलाइज, जो हम बोले थे, थोड़ा वीडियो दिखाए थे पहले, ये देखो चैनलाइज, कहाँ गया, देखो चैनलाइज, मतलब एक ही लाइन फॉलो करके करके जा रहा है, बिकॉज ये लेन मार्किंग की वजह से, ठीक है, चैनलाइज हो रहा है, सो चैनलाइज द मूवमेंट ऑफ द पेडेस्ट्रियन का भी चैनलाइज मूवमेंट होता है, साइक्लिस्ट का भी होता है, ट्रैफिक का तो होगा ही, ठीक है, कन्वे इंफॉर्मेशन टू द रोड यूजर विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग द अटेंशन फ्रॉम द कैरेज वे, मतलब तुम गाड़ी चलाते जा रहे हो, तुमको और कुछ देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने रास्ता क्लियर है कि हमको इस डायरेक्शन से जाना है, ठीक है, मेरा रोडवे इस तरफ जा रहा है, राइट, दैट इज क्लियर, तुमको डिस्ट्रैक्शन मतलब आसपास देख देख कर नहीं चलाना पड़ रहा है, गाड़ी में तुम मतलब कैरेज वे की तरफ ही देख कर तुम इजीली चला पा रहे हो, ओके, सो these are the purposes of the road marking। अब कलर्स जनरली क्या होता है, मैक्सिमम व्हाइट यूज करते हैं, राइट, जनरली मार्किंग्स आर व्हाइट, लेकिन कहीं कहीं पे येलो भी रहता है, तो किस जगह पे येलो रहता है, जो एकदम रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है वहां पे हमको येलो कलर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उस जगह को, राइट, वहां पे थोड़ा नो ओवरटेकिंग जोन, मतलब वहां पे तुम ओवरटेक नहीं कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे या पार्किंग रेस्ट्रिक्शन है, उस जगह पे हम लोग को ये येलो कलर से डिलिनिएट करना है, लाइन ड्रॉ करना है, ओके। ब्लैक कलर भी होता है अल्टरनेट विद द व्हाइट, कहाँ पे, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, वहां पे ब्लैक व्हाइट रहता है, राइट, कर्व्स में जो है उसमें भी ब्लैक व्हाइट या येलो ब्लैक रहता है, राइट, सो जनरली 3 कलर्स ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये तो टाइप हो गया, लॉन्गिट्यूडनल इंटरसेक्शनल ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, ओके, डिफाइन कर दिया है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग से, इट इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, ओके, क्या होता है, इट गिव्स आइडिया, ड्राइवर को एक आइडिया देता है कि एक पोजीशन क्या है, रास्ते का कौन सा पोजीशन है जहां पे तुम लोग अपना गाड़ी चला सकते हो, राइट, दूसरा क्या है, इंडिकेटिंग, दूसरा है शुड बी व्हाइट, जनरली व्हाइट ही होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक्सेप्ट इन दिस केसेस जहां पे पार्किंग है वहां पे येलो दे देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन जहां पे है वहां पे येलो, नो ओवरटेकिंग ये तो हम लोग बोल ही चुके हैं, राइट, येलो रहता है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स कि क्या क्या है लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग, सो दिस इज वन मेन एग्जांपल, मतलब सेंट्रल लाइन मार्किंग, ठीक है, ये जो है सेंट्रल लाइन देखो डैश डैश करके जा रही है, ये क्या है, ये ट्रैफिक का डायरेक्शन इस तरफ है, ये भी इसी तरफ में ले कर रहे हैं हम लोग, राइट, प्लेस कर रहे हैं, सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, ये है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। अब देखो कई कई जगह पे ये सॉलिड रहता है, लेकिन मैक्सिमम ये वाला क्या रहता है, ऐसे गैप गैप में रहता है, ठीक है, क्यों, एनी आइडिया क्यों होता है, ये गैप का मतलब क्या है, और अगर ये सॉलिड रहता, जैसे यहाँ पे देखो ये सेंट्रल लाइन है, ये सॉलिड है प्लस येलो भी है, क्यों, अगर ये कंटिन्यूअस रहता इसका मतलब ये जो डैश डैश है मतलब क्या है कि यू कैन क्रॉस दिस लेन, मतलब तुम ये वाला लाइन को क्रॉस कर सकते हो, मतलब
ओवरटेक करने के लिए क्या करना है, सपोज तुम्हारे सामने एक बस है, बहुत बड़ा ट्रक है, ठीक है, तो तुम ये वाला क्रॉस करके इस तरफ में जाओगे, फिर उसको ओवरटेक करके अपने लेन में आ जाओगे, राइट। सो ये डैश डैश है, मतलब यू कैन क्रॉस। अगर ये सॉलिड होता, तुम्हारे सामने ट्रक है, यू कैन नॉट ओवरटेक दैट ट्रक, ठीक है, मतलब कि यू कैन नॉट ओवरटेक कैसे करते, उसके ऊपर से तो नहीं जाओगे, ऑब्वियसली साइड से जाना पड़ेगा, राइट। तो साइड से लिए तुमको क्रॉस करना पड़ेगा ये लाइन, लेकिन ये लाइन सॉलिड है, मतलब क्या है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन, जैसे ये वाला लाइन, ठीक है, Yes, ma'am. तो क्रॉस करके नहीं जा सकते, सो दैट इज नो ओवरटेकिंग, मतलब तुमको यू कैन नॉट चेंज द लेन इन दैट केस, ओके, सॉलिड अगर रहता तो। और येलो का मतलब तो बोल ही दिए, यहाँ पे नो ओवरटेकिंग है, नो रेस्ट्रिक्शन, पार्किंग रेस्ट्रिक्शन, ये सब के लिए यहाँ पे येलो रहता है, ओके। और दूसरा है बॉर्डर, और एक लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है तुम्हारा बॉर्डर और एज लाइन, ये जो है ये भी सॉलिड है, मतलब इसको क्रॉस नहीं करना है, तुम्हारा इतना ही है, कैरेज वे इतना ही है, यहीं पर तुमको अपना गाड़ी को चलाना है, यहाँ पे डैश है, मतलब यू कैन क्रॉस, ओके, क्रॉस कर सकते हो, ये वाला चेंज कर सकते हो लेन अपना, ओके। दीज आर द बॉर्डर मार्किंग और एज मार्किंग। अभी कभी कहीं पर तुम्हारा डबल बॉर्डर रहता है, देखो डबल लाइन मतलब है कि ये और रेस्ट्रिक्टेड है, और मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन, मतलब तुमको एकदम स्ट्रिक्टली यू शुड नॉट क्रॉस। अगर यहाँ पे बाई चांस क्रॉस भी कर दिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्रॉस करना ही नहीं है, बॉर्डर मार्किंग को क्रॉस करना ही नहीं है अंटिल इट इज इमरजेंसी, ठीक है। तो कहाँ पे जनरली ये प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे मतलब हैजर्डस लोकेशन है, मतलब जहाँ पे पीपल है, लाइक पब्लिक है, जहाँ पे, जैसे ये देखो यहाँ पे रुका हुआ है, बस स्टैंड के लिए रुका हुआ है, तो यहाँ पे पर्सन्स पीपल है, पेडेस्ट्रियंस है, तो ये वाला देखो डबल लाइन है, मतलब यहाँ पे तुमको क्रॉस करना ही नहीं है, ठीक है। तुमको अगर जाना है तो इस कैरेज में तुम्हारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इसमें तुम ट्रेवल करो, यहाँ पे आना ही नहीं है, ओके। सो एक्सेप्ट इमरजेंसी तुम ये क्रॉस नहीं कर सकते, ओके। सो डबल बॉर्डर और एज लाइंस इसको बोलते हैं, डबल बॉर्डर या एज लाइन, डबल एज लाइंस, ठीक है। दूसरा है नो ओवरटेकिंग जोन, ये जो देखो जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रैवल करना पड़ता है, गाड़ी को स्लो डाउन करना पड़ता है, तो ये नो ओवरटेकिंग जोन वहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये जो देखो येलो कलर का है और सॉलिड है, मतलब यू कैन नॉट क्रॉस, दैट इज नो ओवरटेकिंग, एंड दिस इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब ये वाला एकदम सेफली चलाना है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पूरा ये स्कूल का एरिया है, इसलिए पूरा येलो कलर कर दिया है, ओके, सेंट्रल लाइन को। सो दिस इज कॉल्ड नो ओवरटेकिंग जोन मार्किंग। देखो कभी कभी पूछता है कि ये सर ये जो सॉलिड है, हम जो बोले क्यों सॉलिड रहता है, क्यों डैश रहता है, डैश का मतलब है कि यू कैन क्रॉस एंड ओवरटेक, सॉलिड का मतलब यू कैन नॉट क्रॉस, राइट, मतलब तुमको ओवरटेक करने का वहां पे अलाउ ही नहीं है, सो दैट इज नो ओवरटेकिंग जोन। अब आता है हैश्ड मार्किंग्स ऑन द शार्प कर्व, जैसे ये देखो पूरा टर्निंग है, कर्व है, तो यहाँ पे ऐसा हैश मार्किंग, दिस इज कॉल्ड द पैटर्न मार्किंग, ओके। ये जो पैटर्न है, पैटर्न टाइप का दे दिया है हैश मार्किंग, ओके। ये जो देखो टर्निंग में इधर हैश मार्किंग है, इसको बोलते हैं वार्निंग मार्किंग। और ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ पे शायद क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, सो इंटरसेक्ट टी इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो टी इंटरसेक्शन में यहाँ पे कुछ कुछ मार्किंग दिया गया है, सो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन मार्किंग, ओके। तो इस वाले के लिए ये वाला ट्रांसवर्स है, और इस वाले के ये वाले के लिए तुम्हारा ये वाला लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है, ओके। ओके जैसे ये सब देखो, सिर्फ पेडिस्ट्रियन मार्किंग यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जो एरो दे दिया है, ऑल दिस आर द इंटरसेक्शंस मार्किंग, इंटरसेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मार्किंग दे दिया है। सो दिस इज व्हाट, देखो यहाँ से गाड़ी आ रहा है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्किंग, सो दिस इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब ये है क्या बोलते हैं इंटरसेक्शनल मार्किंग, ओके। नाउ डायरेक्शनल एरो, जो वर्ड मैसेज बोलते हैं हम लोग, या डायरेक्शन जो देते हैं, ये सब भी तुम्हारा मार्किंग के अंदर ही आता है, डायरेक्शन शो कर रहा है, ओके। ये जो देखो डायरेक्शन एरो, ओके, ये है तुम्हारा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ओके। सो दिस इज अगेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है। मार्किंग्स ऑन द रोटरी, ये जो रोटरी है उसमें भी मार्किंग्स दे दिया है, दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट मार्किंग भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्या है, ये तो पेवमेंट नहीं है, ये रास्ता नहीं है, ये तो अलग सा एक ऑब्जेक्ट है, बट इट इज विद इन द पेवमेंट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट मार्किंग विद इन द कैरेज वे, ओके।
कोई कोई होता है ऑब्जेक्ट इस तरफ है कैरेज वे के बाहर, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको हमको मार्क कर देना है। उसके अंदर में तुम्हारा पैर मतलब ट्री आया या कोई पोस्ट आया या कोई पोल आया, कुछ भी आया, उसको कर्व आया, उसको मार्क कर देना है। दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट ऑब्जेक्ट मार्किंग एडजेसेंट टू द कैरेज वे, और ये सब है ऑब्जेक्ट मार्किंग विद इन द कैरेज वे, ठीक है। स्पीड ब्रेकर्स, सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन ये विद इन द कैरेज वे है, ओके। दूसरा है तुम्हारा ये जो रेस्ट्रिक्टेड मार्किंग, मतलब साइकिलिंग बोलो, पार्किंग बोलो, ठीक है, वहां वहां पे ये येलो कलर का दे दे, देखो पार्किंग के लिए येलो कलर का, ओके। सो दिस आर कॉल्ड द मार्किंग्स फॉर पार्किंग। बस स्टॉप मार्किंग, ये देखो अलग सा एक मार्किंग दे दिया है बस स्टॉप के लिए, ओके, यहाँ पे आके नहीं रुकेगा गाड़ी। वर्ड मैसेज, देखो यहाँ पे स्लो word message marking. Yes. So these are the examples of the word message marking. Information to guide, warn और regulate traffic. Slow मतलब तुम अपना स्पीड स्लो करो यहाँ पे, ओके, ठीक है, तो रेगुलेट भी कर रहा है उसको, स्टॉप भी बोलेगा कई कई जगह पर, ठीक है। ये जो बोला है गिव वे, मतलब कि गिव वे जनरली होता है, देखो एक होता है मेजर रोड, एक होता है माइनर रोड। मेजर मतलब वहां से हेवी ट्रैफिक वॉल्यूम का आएगा ट्रैफिक, ठीक है, और माइनर मतलब कम वॉल्यूम का ट्रैफिक आएगा। तो माइनर डायरेक्शन से जो भी आ रहा है उन लोग को हमेशा रास्ता छोड़ना पड़ता है फॉर मेजर रोडवे, ओके। मेजर रोड से जो जो ट्रैफिक आ रहा है उसको हमेशा रास्ता देना पड़ता है माइनर को, ठीक है। तो द साइन बोर्ड या मार्किंग जो भी यूज करते हैं उसके लिए इन दैट केस दैट इज कॉल्ड गिव वे मार्किंग, ओके। चेक बोर्ड मार्किंग ये सब है तुम्हारा ऑब्जेक्ट मार्किंग्स के अंदर ही आएगा, लेकिन दीज आर विद इन द कैरेज वे, सो ऑब्जेक्ट मार्किंग विद इन द कैरेज वे, ओके, ये सब है ऑब्जेक्ट मार्किंग, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट मार्किंग, हम लोग बोले थे देखो ये क्या है, ये सब दिखाई दे रहा है, ये भी मार्किंग किया है, ये जो ये देखो ये वाला भी व्हाइट कर दिया है, ये पोल को भी Yes. ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, ये ट्री देखो ट्री को भी मार्किंग कर दिया है, राइट। यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है वहां पे भी मार्किंग हम लोगों ने कर दिया है। सो ऑल दिस आर द ऑब्जेक्ट, ये तो कैरेज वे नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है, बट दिस आर एडजेसेंट और विद इन द कैरेज वे, राइट। आइदर कैरेज वे के बगल में है या कैरेज वे के ऊपर है, ठीक है, तो हमको उसको भी मार्किंग कर देना पड़ता है। तो एडजेसेंट में कौन कितना, मतलब हर जगह हम लोग मार्क कर देंगे क्या, मतलब जितना दूर हो सकता है नहीं, कितना दूर तक हमको मार्क करना है, जो जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैरेज वे के 1.5 मीटर के अंदर रहेगा, ठीक है, मतलब कैरेज वे जहाँ पे खत्म हुआ अब 1.5 मीटर के एरिया के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट रहेगा सबको हमको मार्क कर देना है अप टिल हाइट ऑफ 1.2। देखो ये वाला पोस्ट ऑब्वियसली 1.2 मीटर तक ये वाला कलर कर दिया है पोस्ट को, ठीक है। तो 1 मीटर हाइट तक हमको कलर करना है, और ऑब्जेक्ट कहां तक रहना चाहिए, 1.5 मीटर के अंदर में होना चाहिए, ओके। दीज आर द कैरेज वे मार्किंग, सॉरी ऑब्जेक्ट मार्किंग विद इन द कैरेज वे, राइट। ये सब भी तो एक कर्व टाइप का है, तो यहाँ पे भी मार्क कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट करके, ये जो है ये भी तुम्हारा मार्किंग ही है, ओके। ये जो है देखो कर्व मार्किंग, ये जो है विद इन द कैरेज वे, दोनों कैरेज वे के बीच में है, तो ये कर्व मार्किंग है, ओके। दूसरा है एडजेसेंट टू द कैरेज वे, तो एडजेसेंट बोले थे कितना 1 मीटर बियॉन्ड द फॉर्मेशन विथ, जिसके उसके अंदर में जितना भी आएगा उन सबको ऑब्जेक्ट को हमको मार्किंग कर देना, कितना हाइट तक मार्किंग करना है, पोल का 1.25 मीटर अबव द रोड लेवल, उतना दूर तक हमको मार्किंग मार्क कर देना है, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आता है, जैसे गार्ड रेल, गार्ड स्टोन, ठीक है। गार्ड रेल मतलब है कि हिली एरियाज में जब जाओगे तो साइड में एक स्लैब दिखाई देगा, तो बहुत सारा स्लैब मतलब ले किया है, ठीक है, सब्सिक्वेंटली, सो दो स्लैब्स आर नोन एज द गार्ड रेल्स, ओके। तो उसको भी Yes, ma'am. व्हाइट करके कलर से हम लोग कर देते हैं, ट्रीज Mountain. वगैरह, हाँ ये जो देखो ये सब गार्ड रेल्स है, ठीक है। तो ये भी देखो 1.5 मीटर के अंदर ही है ये सब, तो इसको व्हाइट कर दिया 1.25 हाइट तक, ओके। ये जो देखो ये कर्व है, ये भी इसको भी व्हाइट कर दिया है, राइट। ये जो देखो इसको भी व्हाइट कर दिया है, ये पोल को भी व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, ओके। सो व्हाट एवर कम्स विद इन 1.5 सबको मार्किंग करते गया है, ओके। कर्व्स में जैसे ये हो गया, ये है विद इन द कैरेज वे है बेसिकली, ये तो मतलब बीच में ही है कैरेज वे के बीच में, ये है एडजेसेंट टू द कैरेज वे, ये सब ठीक है, ये सब ओके। ये देखो स्पीड ब्रेकर, दैट इज अगेन विद इन द कैरेज वे, ये जो स्पीड ब्रेकर है इसको भी मार्क करना पड़ता है विद इन द कैरेज वे,
और ये इसको बोलते हैं कैट आई, इसको बोलते हैं कैट आई रिफ्लेक्टर, राइट, नाइट विजन के लिए। ओके, सो ऑल दिस टाइप, देखो यहाँ पे भी मार्किंग कर देना पड़ता है अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहाँ पे, ठीक है, वर्किंग प्रोग्रेस है, वहाँ पे भी हमको साइन बोर्ड, ये देखो साइन बोर्ड भी है, मार्किंग भी है, सब कुछ कर देना है, ठीक है। नाइट रिफ्लेक्टर ये सब लगा दिया है जिससे कि नाइट में वो विजन हो। ओके, तो देखो इससे रास्ता को हम लोग डिलिनिएशन हो रहा है, मतलब हमको पता चल रहा है कि गाइडेंस की तरह गाइड कर रहा है कि ये वाला रास्ता ऐसे जाएगा। ओके, ये वाला रास्ता ऐसे जाएगा, सो पर्पस फुलफिल कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मार्किंग। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा साइन, ठीक है, ये है एज पर IRC 67। ओके, तो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड द साइन इनटू 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन, प्लीज रिमेंबर। एक क्या है, कॉशनरी या वार्निंग साइन, ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम है, क्वेश्चन करना, वार्न करना, राइट, इसलिए कॉशनरी या वार्निंग। दूसरा है मैंडेटरी और रेगुलेटरी, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको मैंडेटरी पूछ लिया, कभी कभी रेगुलेटरी पूछ गया, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है। ओके, सो मैंडेटरी मतलब यू हैव टू फॉलो द, जो भी वहां पे साइन बोर्ड में जो भी लिखा है तुमको वो फॉलो करना है, इट्स मैंडेटरी। ओके, एंड रेगुलेटरी मतलब तुमको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके चलना है ना, इसीलिए इसको भी रेगुलेटरी भी बोल सकते हैं। दूसरा है देखो इंफॉर्मेटरी, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा, तो इंफॉर्मेशन मिल रहा है मतलब क्या, कुछ तुमको गाइड कर रहा है, राइट, दैट साइन तुमको कुछ डायरेक्शन की तरफ गाइड कर रहा है या इन्फॉर्म कर रहा है। कॉशनरी मतलब तुमको वार्निंग कर रहा है कि रुको, थोड़ा रुको, सामने कुछ है, थोड़ा धीरे से चलाओ, राइट, वार्निंग कर रहा है। मैंडेटरी मतलब है तुमको करना ही है, फॉलो करना है तो करना है, राइट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रोड साइंस। अब हमको एक एक एग्जांपल दो, कॉशनरी साइन कहाँ पे देखे हो तुम, बोलो, कॉशनरी या वार्निंग साइन, एक एग्जांपल दो तो। इतना सारा तो साइन बोर्ड देखते देखते जाते होंगे, तो कभी ख्याल किया है? हाँ, बोलो एक एग्जांपल दो कॉशनरी या वार्निंग का, कि तुमको कॉशन कर रहा है, बोल रहा है कि थोड़ा धीरे से चलाओ, सामने कुछ आने वाला है, दैट इज वन काइंड ऑफ रेल लाइन के आगे, रेल लाइन के आगे, क्रॉसिंग में। रेल लाइन के आगे, और मैम स्कूल का आगे भी होता है तो। हाँ, पुल का आगे, और Near about school, college, यस, hospitals. स्कूल, कॉलेज, यस यस, तो स्कूल अहेड, राइट, तुम्हारा क्या बोलते हैं, बम्पर अहेड, सो ऑल दिस आर द कॉशनरी। ओके, अब मैंडेटरी में आते हैं, वेरी गुड, हाँ ये सब है कॉशनरी। ओके, अब तो दूसरा में आओ, मैंडेटरी में क्या आएगा, मैंडेटरी में तुमको फॉलो करना है एकदम, अगर बोल दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना है, रुकना है तो रुकना है, जाना है तो जाना है, वैसा। एग्जाम्पल दो। कॉमन, मैंडेटरी कॉमन है, कॉमन वाला साइन बोर्ड। याद आ रहा है किसी को? Traffic signal, ma'am. सिग्नल नहीं, सिग्नल तो अलग से कंट्रोल, पूरा कंट्रोल डिवाइस हो गया। देखो एक आता है ना स्टॉप साइन, राइट, या डेड एंड साइन, या प्रोहिबिटरी मतलब कि नो एंट्री, ये सब है तुम्हारा क्या, ऑल दिस आर द मैंडेटरी, तुमको नहीं करना है, राइट, नो यू टर्न, ठीक है, तो ऑल दिस आर द मैंडेटरी। और सबसे जो कॉमन है वो है तुम्हारा स्पीड साइन, जो है स्पीड 60 किलोमीटर, ये है वो है, बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द मैंडेटरी। ओके, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मैंडेटरी। अब इंफॉर्मेटरी मतलब जो सबसे पहले हमने लिखाया था ना ऊपर ग्रीन कलर का, जो डायरेक्शन शो कर रहा है कि इतना किलोमीटर के बाद ये डायरेक्शन आएगा, वो डायरेक्शन आएगा, ठीक है, सो ऑल दिस आर द इंफॉर्मेटरी और द गाइड साइन, ठीक है। अब देखना कलर भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तुम लोग शायद ख्याल नहीं किए होंगे, लेकिन अब से देखना कि कलर भी डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट होता है, सबका इन तीनों का अलग अलग रहता है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस। तो कॉशनरी जनरली होता है क्या है, ट्रायंगुलर शेप होता है। ओके, इसका मेन है क्या, टू कॉशन एंड अलर्ट द रोड यूजर्स टू पोटेंशियल डेंजर और एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन हैजार्डस कंडीशन आइदर ऑन और एडजेसेंट टू द रोडवे, मतलब रोडवे के पहले जैसे होगा कि स्पीड ब्रेकर आने वाला है, थोड़ा स्पीड कम करो, या साइड में स्कूल है थोड़ा कम करो, एडजेसेंट टू द रोडवे हो गया कॉशन, ठीक है।
तो ट्रायंगुलर इन शेप होता है विथ रेड बॉर्डर, मतलब बॉर्डर विल बी रेड, सिंबल जो भी ड्रॉ करते हैं दैट इज ब्लैक, और पीछे का बैकग्राउंड विल बी व्हाइट, जैसे ये देखो, ये सब तो तुम लोग देखे हो, राइट। सो ऑल दिस आर दी कॉशनरी, ठीक है। ये जेब्रा क्रॉसिंग अहेड ये भी है, वर्किंग प्रोग्रेस ये भी है, कहीं कहीं पे तुम्हारा ये वाला बैकग्राउंड येलो हो जाता है, ओके। तो दिस इज मेनली ट्रायंगुलर इन शेप, कॉशनरी ये भी सब कुछ है तुम्हारा ट्रायंगुलर में होता है, ओके। अब ये जो भी है इसका ये हाइट कितना है, कलर कितना है, ये सब है, एंगल डिग्री कितना, ऑल दिस आर एज पर IRC 65, ओके। देखो ये है हम लोग जो जनरली हम लोग देखते हैं जो एग्जाम मतलब रास्ते पर, ऐसा हो गया, ये जो बम्पर या स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे एक्चुअली क्या बोलते हैं, बहुत सारा डियर है, तो डियर भी क्रॉस कर सकता है रोज रास्ते को, तो तुमको स्लो डाउन करना है, ओके। सो ड्राइव सेफ, सो यहाँ पे दे दिया है वर्किंग प्रोग्रेस, गो स्लो, सो ऑल दिस आर द एग्जांपल ऑफ कॉशनरी, ओके, वार्निंग साइन। दूसरा है मैंडेटरी, तो पर्पस क्या है, टू इंडिकेट द प्रोहिबिशन, जनरली होता है कि प्रोहिबिशन ही होता है कि नहीं करो, वैसा ही होता है, और कभी कभी बोलता है कि रेगुलेट करने का भी होता है, ऑपरेशन, जैसे कि 60 किलोमीटर में ही चलना है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन, तुमको इतना ही करना है, ऑपरेशनल सिग्नल साइन बोर्ड, ओके। तो सर्टेन का प्रोहिबिशन ऑन सर्टेन काइंड ऑफ व्हीकल मैन्यूवर, मैन्यूवर मतलब कि नो यू टर्न, नो राइट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, मतलब जो टर्निंग वर्निंग, दैट इज कॉल्ड द मैन्यूवर, ओके। व्हीकल टाइप मतलब वहां पे ये टाइप का व्हीकल अलाउ नहीं है, बाइसाइकिल अलाउ नहीं है, ऐसा वाला। पार्किंग रेस्ट्रिक्शन, व्हीकल स्पीड, व्हीकल का साइज, व्हीकल का कितना टर्न ले सकता है, ऑल दिस आर दी मैंडेटरी। शेप जनरली सर्कुलर होता है ये वाला का, एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, लेकिन ऑक्टागोनल होता है स्टॉप साइन का, स्टॉप मतलब रुको, राइट, एकदम मैंडेटरी, रेगुलेट कर रहा है, तो स्टॉप इज आल्सो मैंडेटरी, बट शेप इसका सर्कल नहीं होता है, ऑक्टागोनल होता है, ये याद रखना है, ओके। Yes, ma'am. यील्ड और गिव वे जो बोले थे हम लोग, गिव वे साइन जनरली होता है माइनर सेगमेंट में, ओके, माइनर रोड में, तो वो जनरली ऑपोजिट ट्रायंगुलर होता है, उल्टा ट्रायंगुलर हम दिखाएंगे, देखो ये है स्टॉप, ये है गिव वे, और सब बाकी सब होता है तुम्हारा सर्कुलर, ओके। तो ये तो दूसरा शेप है, तो इसको हम लोग मैंडेटरी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या कॉशनरी बोलेंगे, नहीं, ये है तुम्हारा मैंडेटरी, रास्ता देना ही है तुमको, गिव वे रुकना ही है, ठीक है। सो ऑल दिस आर दी मैंडेटरी, और बाकी का होगा तुम्हारा जनरली ऐसा होता है, ठीक है। प्रोहिबिटरी, ये बोला प्रोहिबिटरी, नो नो नो, नो हॉर्न, नो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा टाइप का व्हीकल अलाउ नहीं है, नो पार्किंग, नो यू टर्न, ये सब है। सो अब जनरली हम लोग का जो होता है रास्ते पर ऐसा वाले तुम देखे होंगे, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, नो स्ट्रेट स्टॉप ऐसा होता है, ओके। ये गिव वे देखो, ये माइनर रोड है, ये मेजर रोड है, मतलब इसको रुक गया क्योंकि यहाँ पे गाड़ी आ रहा था, इसको रुक गया, मतलब इसको गाड़ी को छोड़ दिया, मेजर रोड से जो भी आ रहा है उनको रास्ता दे रहा है, खाली मिलेगा देन यू कैन यूज, ओके। तो गिव वे, तो ये वाला होगा मैंडेटरी, इसको फॉलो करना है, ओके। दिस इज ऑल्सो योर वन काइंड ऑफ गिव वे एंड रोटरी एक साथ दे दिया है, रोटरी अहेड है, ठीक है। ये वाला रोटरी क्या है बोलो, रोटरी ये मैंडेटरी है ना कि कॉशनरी है, ये वाला मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। मैम रोटरी अहेड मतलब क्या है, ये तुमको कुछ आइडिया दे रहा है, राइट, वांट दे रहा है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो गया, ओके। गिव वे तो है तुम्हारा मैंडेटरी, और रोटरी अहेड या कुछ चीज अहेड है मतलब क्या है, कॉशन कर रहा है, ओके। सो दैट इज कॉशनरी। तो स्टॉप मतलब देखो ये माइनर रोड में पूरा रुक गया है, जब इसको पास मिलेगा देन ओनली ही कैन गो, ओके। Okay. तो अब आते हैं कुछ कुछ कंपलसरी, तुमको फॉलो करना ही है, ओके, कंपलसरी। तो जनरली ये ब्लू कलर में होता है, ओके। तो देखो ये सब है कंपलसरी, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ठीक है, कीप राइट, कीप लेफ्ट, ये जनरली कहाँ पे होता है, लेट अस सी, ये होता है तुम्हारा एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था या कुछ है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, तुमको अब ये वाला लेन यूज नहीं करना, तुम सामने से ये वाला लेन ही यूज करके आ रहे हो, लेकिन इस पोर्शन में ये वाला लेन यूज नहीं करना है, तो तुमको अब कहाँ पे जाना है, राइट की तरफ में जाना है, मतलब कीप राइट, राइट। तो ऐसा एरो का इंडिकेशन का मतलब है कीप राइट, ओके, दिस इज मैंडेटरी, ओके। ये है साइन बोर्ड जो है, जो भी है तुम्हारा, दिस इज द मैंडेटरी ऑपरेशनल कंट्रोल डिवाइस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ऑपरेशनल कंट्रोल साइन बोर्ड, एंड इट कम्स अंडर मैंडेटरी। तुमको इतना ही डिस्टेंस क्या स्पीड का। अब लास्ट में आते हैं इंफॉर्मेटरी, ओके। जनरली होता है टू इंडिकेट लोकेशन एंड डायरेक्शन, डिस्टेंसेस विद द एरोस इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, जैसे ये सब है,
अब सिर्फ तुम्हारा डायरेक्शन ही नहीं होता है, प्लेस ही नहीं होता है, कुछ कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि हॉस्पिटल में है या कुछ हॉस्पिटल सामने कहीं पर है, फूड रेस्टोरेंट कहीं पे है, राइट, फर्स्ट एड कहीं पर है, फोन बूथ कहीं पर है, पार्किंग ये जो यहाँ पे पार्क कर सकते हो, राइट, साइकिल पार्किंग, ऑल दिस आर द इंफॉर्मेशन, तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे पार्क कर सकते हो। एक है नो पार्किंग, दैट इज मैंडेटरी, एक है तुम यहाँ पे पार्क कर सकते हो, मतलब गाइड या इंफॉर्मेशन दे रहा है तुमको, राइट। सो दीज आर द इंफॉर्मेटरी, ओके, सो ऑल दीज आर द इंफॉर्मेटरी गाइडलाइंस। ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो ये है इन जनरल जो हम लोग दिखने को मिलता है रास्ते पर। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेटरी। तुम लोग का कॉलेज में भी दिखना है, ऐसा साइन बोर्ड दे दिया कि सब कुछ एक साथ खिचड़ी करके दे दिया है, ओके, देखना तुम लोग वहां पे उसमें है। तो दिस आर काइंड ऑफ इंफॉर्मेटरी। ये जो है टू व्हीलर यहाँ पे पार्किंग, कार पार्किंग, बाइसिकल पार्किंग, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा टाइप का भी होता है जो तुमको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट कैंपस, जो कॉलेज में भी है हम लोग का, ठीक है। सो ऑल दिस अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेटरी साइंस साइन बोर्ड, ठीक है। ओके, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। होप इट इज क्लियर। दो तीन टाइप का साइन होता है, कॉशनरी या वार्निंग, ठीक है। दूसरा है मैंडेटरी या रेगुलेटरी, ठीक है। तीसरा है इंफॉर्मेटरी या डायरेक्शनल, ओके। तो ओके कौन सा इसमें आएगा, ये तुम लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। ओके मैम। एमसीक्यूज में आएगा। अगर बोलेगा कि स्टॉप साइन कैसा मार्किंग है, इट इज रेगुलेटरी या क्या है, तो तुमको वो करना है, उसका क्या है, शेप क्या है, ऑक्टागोनल, सर्कुलर, ट्रायंगल क्या है, तो ये सब भी देखना है, ओके। गिववे का उल्टा इनवर्स ट्रायंगल है, ओके। देन थैंक यू, आज के लिए इतने करते हैं हम लोग। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। ओके ओके, वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। हम्म।